السلام علیکم، علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیر محل میں تحصیل انتظامیہ کی نااہلی، شہر تجاوزات کی نظر۔ اللہ والا چوک سے ملحقہ رجانہ روڈ، صدر بازار اور سبزی منڈی سمیت بازاروں میں پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ تجاوزات کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ کھڑے رکشوں نے بھی سڑکیں بلاک کر دیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تحصیل انتظامیہ کی نااہلی اور مبینہ ملی بھگت سے شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ اللہ والا چوک، رجانہ روڈ، صدر بازار اور سبزی منڈی روڈ پر پیدل چلنا بھی محال ہے۔ دکانداروں نے سرعام سربازار دکانوں سے باہر سڑک تک سامان رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے 40 فٹ چوڑے بازار 10 فٹ سے بھی کم رہ گئے۔ ادھر سندھ حکومت کی تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسکولوں کی حالت نہ سدھر سکی، اکثر اسکول خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت سے اسکولوں کا تعمیراتی بجٹ کرپشن کی نظر ہو گیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ایک طرف تو سندھ حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ ہم نے سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی ہے، تو دوسری جانب سندھ کے دیہاتوں کے کئی اسکول یا تو مویشیوں کے جو باڑے ہیں ان میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور یا تو وڈیروں کی اوتاقیں بن گئی ہیں۔ کئی بلڈنگیں جو ہے کسی کی ذاتی پراپرٹی یا کسی نے اپنے گھر بنا دیے ہیں، اور کئی اسکول جو ہیں اسکولوں کی بلڈنگیں ابھی تک ان کا کام مکمل ہی نہیں ہوا۔ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینی کا مڈل اسکول ہے جو گزشتہ 15 سال سے تعمیر نہ ہو سکا۔ اس پوری یونین کاؤنسل میں ایک ہی مڈل اسکول ہے جس کا کام بھی التوا کا شکار ہے، اور دیکھا جائے کہ اس یونین کاؤنسل میں تقریباً 60 گاؤں ہیں جو ان کے بچے مڈل اسکول میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب ضرورت اس بات یہ ہے کہ منتخب نمائندوں کو چاہیے کہ اس اسکول کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کیا جائے تاکہ پوری یونین کاؤنسل میں یہ جو اسکول ہے وہ تعمیر ہو سکے اور یہاں کے بچوں کا مستقبل۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چشتیہ میں بلدیہ کے سینٹری انسپیکٹر کی غفلت اور لاپرواہی سے پرانی عیدگاہ کی روڈ سیوریج کے گندے پانی کے باعث بند۔ کئی بار شکایت کرنے پر بھی انتظامیہ حرکت میں نہ آ سکی۔ نمازیوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روڈ پر کئی دنوں کے کھڑے سیوریج کے گندے پانی سے علاقے میں بدبو اور تعفن پھیل گئی۔ اسکول جاتے بچوں اور نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی بار انتظامیہ کو اطلاع بھی کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کر کے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کو ڈی جی محمد مراد عباسی کی 12 اور 17 ربیع الاول کے حوالے سے میٹنگ میں مذہبی تنظیموں کے علماء اکرام، ڈی ایس پی کو ڈی جی اور ٹاؤن افسران نے شرکت کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے دوست علی لاشاری۔ جی دوست علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوٹ ڈی جی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے آفس میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ڈی جی محمد مراد عباسی صاحب موجود ہیں۔ آج جو میٹنگ ہوئی ہے 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کے حوالے سے، آج بات کریں گے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے کہ 17 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے انتظامات جو ہے وہ کس طرح سے جو کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری میٹنگ اسی سلسلے میں تھی کہ 12 ربیع کے حوالے سے اور خصوصاً پورے مہینے کے حوالے سے جو صفائی کے انتظام ہیں، سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں اور جو دوسرے انتظامی چیزیں ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے، جو ایشوز ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ تو مین چیز تو یہ ہے کہ صفائی، میں نے ٹاؤن وغیرہ جو افسرز ہیں ان کو بھی کنوے کر دیا ہے کہ صفائی کے انتظامات بہتر ہوں، اور جہاں پہ کہیں پانی وغیرہ لگانا ہے، کوئی چونا وغیرہ لگانا ہے وہ بھی لگ جائے، اور لائٹنگ وغیرہ کے جو مین چوراہے ہیں وہاں پہ کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ یہ ایسا دن ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، جو بڑی ایک خوشی ہمارے لیے اور عید کا ہمارے لیے دن ہے۔ تو یہ سارے جو جتنے ہمارے 3 ٹاؤنز ہیں ان کو میں نے کنوے کر دیا ہے۔ انشاءاللہ فرق نظر آئے گا، کافی چیزیں بہتر نظر آئیں گی۔ سیکیورٹی کے حوالے سے ڈی ایس پی صاحب بھی موجود تھے، ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ جہاں سے پروسیشن گزرے گا سیکیورٹی کے اچھے انتظامات کیے جائیں تاکہ کوئی سیکیورٹی لیپس نہ ہو۔ انشاءاللہ امید یہ کریں گے کہ یہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹ بھی بہتر نظر آئیں گے۔ انتظامی حوالے سے بھی ہمارا پورا فوکس ہے، کوئی بھی اگر ایشو ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو خود مانیٹر کریں گے اور پروسیشن وغیرہ میں خود ہوں گے تاکہ کوئی مسائل نہ ہوں۔ جی بالکل، آپ نے اسسٹنٹ کمشنر کو ڈی جی صاحب کی بات چیت سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ٹاؤن انتظامیہ کو بھی جو احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ دوست علی لاشاری، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ماہ ربیع الاول شروع ہوتے ہی خانے بال میں بھی شہریوں کا جوش و خروش عروج پر پہنچ چکا ہے۔ شہریوں نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے گھروں، مسجد،
اور گلیاں سجانے کے لیے سجاوٹی سٹالز کا رخ کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں بیورو چیف عدنان رسول سے۔ جی عدنان رسول، اپڈیٹ کیجیے گا۔ حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے، آقا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے۔ جو ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو خانیوال شہر میں خانیوال کے شہریوں نے اسٹالوں کو سجانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے سجاوٹ کے حوالے تو خانیوال کے شہریوں نے گلی محلوں اور گھروں کو سجانے کے لیے اسٹالوں کا رخ کیا۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، وہ اس وقت خریداری میں مصروف ہے، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی آپ یہ بتائیے گا، جیسے ربیع نور کا چاند نظر آپ خریداری کر رہے ہیں گھروں کو سجانے کے لیے، تو آپ کس طرح سے 12 ربیع الاول کو منائیں گے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جیسے ہی 12 ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے ہمارے یہاں جشن کا سما ہو جاتا ہے، ہماری زندگیوں کا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے اس ماہ مبارک کو بڑی دھوم دھام سے منائیں، گھروں کو سجائیں، بازاروں کو سجائیں، اپنی دکانوں کو سجائیں، بلکہ اپنے آپ کو سجائیں۔ اور سجانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، آپس میں ناراضگیاں دور کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہوئے خوب دھوم دھام سے ماہ مبارک منانے کی، اور تا زندگی ہمیں اسی طرح اپنی زندگی کو اس نیز پر چلانے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خوب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں ترغیب دلائیں۔ میری درخواست ہے اس میڈیا کے ذریعے سے تمام۔ بہت شکریہ عدنان رسول، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء کے بعد حکومت نے اب کھادوں کی قیمت میں بھی 600 روپے فی بوری اضافہ کر دیا ہے، جبکہ کسانوں نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں عابد حسین کمبو کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کے طوفان نے اب کسانوں کی جانب رخ موڑ لیا۔ حکومت نے کسانوں پر مہنگائی کا بم گرا دیا ہے۔ کھادوں کی قیمتوں میں فی بوری 600 روپے کا ہوش ربا اضافہ کر کے قرضوں کے مارے کسانوں کی مشکلات بڑھا دی، جس پر کسان سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ حکومت اگے اپیل ہے کہ کھاداں انیاں مہنگی ہو گئی نے، زمیندار دا پہلے ہی قرضے تھلے دبیا ہے اور ساڈے نال کوئی رعایت کیتی جائے، کھاداں نو سستا کیتا جائے۔ حکومت نو سوچنا چاہیے، فیصلہ لینا چاہیے کہ کھاد بہت مہنگی کیتی ہے، زمینداراں دی طرفوں اعلان کیتا جاندا کہ سانوں یہ منظور نہیں، اسی اگے قرضے تھلے نپے ہوئے ہیں۔ کسان کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی مہنگے بیج اور زرعی ادویات خرید کر فصل کاشت کرتے ہیں، ایسے میں اب کھادوں کی قیمتیں بڑھانا کسان دشمن پالیسی کے مترادف ہے۔ پریشان حال کسانوں نے حکومت سے کھادوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عابد حسین کمبو، ٹی وی ٹوڈے۔ ادھر آزاد کشمیر کے صدارتی ایوارڈ یافتہ مصنف اور شاعر سردار بشیر احمد صدیقی کی 25ویں برسی کی تقریب ان کے آبائی گاؤں سہاڑا میں منعقد کی گئی، جس میں وزراء کرام اور سیاسی و سماجی، علمی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے آزاد کشمیر سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے صابر مقبول۔ کشمیر کے معروف شاعر، مصنف، ادیب، خطیب سردار بشیر احمد صدیقی کی برسی کی تقریب ان کے آبائی گاؤں سہڑا میں انعقاد کی گئی، جس پر وزیر حکومت چودھری یاسین گلشن، سابق سینئر وزیر ملک محمد نواز، وزیر حکومت حافظ احمد رضا قادری، کوآرڈینیٹر وزیر اعظم آزاد کشمیر عابد حسین ملک، سابق صدارتی مشیر سردار عبد المنان گوہر کے علاوہ سیاسی و سماجی، علمی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر بشیر احمد صدیقی کی علمی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ بشیر احمد صدیقی ہمہ جہت اور ہمہ صفت انسان تھے، انہوں نے جہت مسلسل سے رونقیں پائیں۔ سردار بشیر احمد صدیقی متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ اس موقع پر صدیقی میموریل اکیڈمی کی جانب سے ان نوجوانوں میں جنہوں نے محنت اور لگن سے ڈگری حاصل کر کے اپنے والدین اور اپنے علاقہ کا نام روشن کیا اور اپنے ملک و قوم کے لیے خدمات انجام دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان نوجوانوں کو اور ان کے والدین کو ایوارڈ دیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر مرحوم بشیر احمد صدیقی کے فرزند سردار منظر بشیر ایڈوکیٹ نے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ علامہ ارشد القادری نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کروائی۔ صابر مقبول، ٹی وی ٹوڈے، راولپنڈی۔ نوشہرہ ورکاں پولیس کی بڑی کارروائی کے دوران ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور منشیات فروشی سمیت درجنوں مقدمات میں ملوث تھا۔ تھانہ کوٹ لدھا کے علاقے سے ڈاکو نے دوران ڈکیتی شہریوں سے موٹر سائیکل چھینی اور فرار ہو گئے۔ نوشہرہ ورکا پولیس کو 15 پر کال موصول ہوتے ہی سخت ناکہ بندی کروا دی۔ اسی دوران 2 موٹر سائیکلوں پر 3 مشکوک افراد کو جب روکا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دیگر ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا۔
लियाकतपुर में पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब के नारे हवा की नजर हो गए। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 4 दीवारी से महरूम, एक कमरा पर मुश्तमिल स्कूल खस्ता हाली का शिकार। तालिबात को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना। स्कूल के तालिबात खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं और दूसरी जानब स्कूल का मेन गेट भी टूट चुका है। अहले इलाका ने बताया कि अरसा दराज से स्कूल की 4 दीवारी और दीगर तरक्याती कामों के लिए किसी किस्म का फंड जारी ना किया गया, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां ग्राउंड नुमा स्कूल में शदीद सिक्योरिटी खदशात के बावजूद खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। चौबारा में असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतादिद कोयले की गैर कानूनी भट्टियां मिसमार कर दी गई। 9 करोड़ रुपए का सरकारी रकबा भी वागुजार करवा लिया गया। चौबारा में असिस्टेंट कमिश्नर का स्मोग के पेश नज़र और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के अहकामात पर गैर कानूनी कोयले की भट्टियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने फैसलाबाद रोड पर सड़क के गिर्द मौजूद मुख्तलिफ गैर कानूनी भट्टियां मिसमार कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गैर कानूनी भट्टियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रहेगा। उधर मिटियारी के इलाके सईद खान लगारी में रिश्ते के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने टीचर को बेधर्ती से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। गुस्सा ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए लाश कौमी शाहरा पर रखकर एहतजाजी धरना दिया। मिटियारी के इलाके गांव सईद खान लगारी के अलमदार चौक पर 3 मुसल्लह अफराद ने रिश्ते के तनाज़े पर ठट्ठा के रहायशी HS और टीचर जाविया जवार हुसैन को बीच चौराहे पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल गांव सईद खान लगारी में अपने रिश्तेदारों के घर फातह खानी पर आया था। रिश्तेदारों के मुताबिक मकतूल का कत्ल पुरानी दुश्मनी पर हुआ है, जबकि लाश कई देर तक अलमदार चौक पर पड़ी रही, जबकि पुलिस को कई बार इत्तला देने के बावजूद भी पुलिस मौके पर पहुंच ना सकी। बुरसा ने लाश को कौमी शाहरा रखकर एहतजाजी धरना दिया। बुरसा का कहना है कि जब तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं होंगे धरना खत्म नहीं किया जाएगा। दादू जिला भर में कमर तोड़ महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। जिला इंतजामिया और मुनाफाखोरों की मिली भगत आवाम को महंगाई बढ़ गई है और आवाम महंगे दामों अशिया खुरोनोश खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। दादू जिला भर में कमर तोड़ महंगाई ने दिहाड़ीदार मजदूरों की जिंदगी अजीरन कर दी। आटा, सब्जी, दाल, चीनी, ऑयल समेत खाने पीने की चीजों को पर लग गए। मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्ट भी रद्दी की टुकड़ा बनकर रह गई। जिला इंतजामिया और मुनाफाखोरों की मिली भगत ने आवाम को अजाब में मुबतला कर दिया। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत आला हुकाम से महंगाई को काबू पाने समेत आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। कामोकी में महकमा ज़राअत की तरफ से आगाही सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल तोसी, पंजाब साबिका वफाकी वज़ीर, टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर समेत काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा राना जफर की इस रिपोर्ट में। कामोकी में महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को गंदम की पैदावार में 10% से ज़्यादा इजाफे के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी पंजाब डॉक्टर अंजम अली भुट्टर, साबका वफाकी वज़ीर राना नज़ीर अहमद खान, टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर माहर इरफान जफर और काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें काश्तकारों को गंदम में 10% इजाफे के बारे में ब्रीफ किया गया। साबका वफाकी वज़ीर ने काश्तकारों से खिताब करते हुए कहा कि शोबा ज़राअत पाकिस्तानी माईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जबकि डायरेक्टर जनरल ज़राअत और टेक्निकल ऑफिसर का TV टुडे से बात करते हुए कहना था, जिसमें बुनियादी तौर पे खादों के मुनासिब और मुतनासिब इस्तेमाल के लिए, बर वक्त काश्त के लिए, जड़ी बूटियों की तलफी के लिए और मौसमी हालात के मद्देनज़र बेहतर हिकमत अमली की तरबियत दी गई। इस शोबे को मजबूत करने के लिए इस अमर की ज़रूरत है कि फार्मर एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। महकमा ज़राअत की तरफ से किसानों को फसल की अच्छी। नाज़रीन, हेपेटाइटिस बी यरकान की एक किस्म है जो वायरस बी की वजह से होती है। लाखों अफराद हर साल इस बीमारी से लुक़मा अजल बन जाते हैं। पिंड दादन खान के इलाका पिंडी सीदपुर में निजी वेलफेयर और वेलफेयर सोसाइटी पिंड सीदपुर के ताउन से स्कूल में फ्री स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कैंप का इनाकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा उल्फत बलोच की इस रिपोर्ट में।
हेपेटाइटिस बी काला यरकान की एक ऐसी किस्म है जो वायरस बी की वजह से होती है। लाखों अफराद हर साल इस बीमारी से लकमा अजल बन जाते हैं। ये बीमारी एड्स से भी कई गुना खतरनाक है। पाकिस्तान में हर 15 शख्स और दुनिया में तकरीबन 35 करोड़ अफराद इस बीमारी से मुतासर हुए हैं। इस बीमारी की रोकथाम और बचाव के लिए पिंड दादन खान के इलाका पिंडी सैदपुर में नजीर इंटरनेशनल ट्रस्ट रजिस्टर्ड सर्वर फाउंडेशन और पिंडी सैदपुर वेलफेयर सोसाइटी ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुश्तरका तावन से गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल पिंडी सैदपुर में बच्चों के लिए फ्री स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम किया। हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल एजाज साहब और एडमिनिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मैडम राहिला असलम का इंतहाई मशकूर हैं, जिनके तावन से ये मुमकिन हुआ। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और ऑर्गेनाइजर्स आपके वो बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह फारूकी ज़ेर सदारत इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात का जायज़ा लिया गया। मज़ीद जानते हैं वाजिद अली शेख की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हुस्ना तमाम मुसलमानों के लिए मिशले रहा है। दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए हजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए। साहबजादा अनवर हसन कुरैशी का कहना था कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस ब्लॉक 3 की जामे मस्जिद से शुरू होगा, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पाकिस्तानी चौक पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद रूट की तैयारी, सफाई और दीगर इंतजामात की हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में मुतल्लका अरकान मिलादी कमेटी और अफसरान भी मौजूद थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कमिश्नर नौशहर फिरोज कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाह ने जिला भर में सड़कों की मुरम्मत की मुख्तलिफ स्कीमों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाहिद ने नौशहर फिरोज से ठारू शाह, कुंडियारों से कमाल दीरो और कुंडियारों से लाखा रोड तक असर-नो तामीर होने वाली सड़कों की तरक्याती स्कीमों का मुआयना किया। उनका कहना था कि ज़िले में जारी तरक्याती स्कीमों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिल सके। उन्होंने कहा कि काम के मयार पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जा सकता। ठेकेदार को पाबंद किया जाए कि वो मयारी काम करे। डिप्टी कमिश्नर जेएलएम राव परवेज अख्तर की हिदायत पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने सिविल लाइन रोड पर कार्रवाई करते हुए सरकारी ज़मीन वागुजार करवा ली। जेएलएम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग का कीमती प्लॉट कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया। इस प्लॉट पर काफ़ी अरसे से खाना बदोश लोगों ने कच्चे मकानात तामीर कर रखे थे, जिन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पुलिस के हमरा रात के वागुजार करवा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रहमान डार का कहना था कि इस प्लॉट के अलावा भी कई प्लॉट लोगों के कब्जे में हैं, जिन्हें बहुत जल्द वागुजार करवाया जाएगा। इसके अलावा सिविल लाइन रोड से दरिया की तरफ जाने वाले रास्ते जो कब्जा माफिया ने बंद कर रखे हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने के हवाले से सहूलत बाजार कायम कर दिए हैं, जहां पर आवामुन्नास को मयारी और सस्ती ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, आटा, चीनी, सब्जी और फल फराहम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद चौधरी असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर के साथ सहूलत बाजार में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गोमंडी बुरेवाला में भी सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। यहाँ पर एशिया खुर्दो नोश, फल, सब्जियाँ, दालें, घी, आटा और आम बाजार से जो है वो सस्ता मुहैया किया गया। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला कामरान बशीर डोगर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये बाजार लगाने का क्या मकसद था और कितनी जो है वो सहूलियत फराहम की गई। बहुत शुक्रिया जी। गवर्नमेंट पंजाब की डायरेक्शन पे हमने सहूलत बाज़ार इस्टेब्लिश किया है। बेसिकली गवर्नमेंट का ये था कि हम जनरल पब्लिक को चूँकि महंगाई की वजह से रिलीफ दिया जाए। इस सहूलत बाज़ार में तमाम अशियाए खुरोनोश की, जिनको डेली बेसिस पे इसेंशियल कमोडिटीज़ हम जिनको कहते हैं, वो अवेलेबल हैं। मार्केट से 5 से 10 रुपए का फ़र्क है। यहाँ पे सस्ती जो नरखों पर दस्तियाब हैं। तो इसके अलावा रेस्क्यू 1122 का भी काउंटर है, हेल्थ वाले लोग भी हैं। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम बुरे वाला आवाम के लिए अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता है उनको सहूलतें दें, उनको अर्जा नरखों पर चीज़ें दस्तियाब कराएं। आखिर में मेरी उनसे अपील है कि वो ज़रूर आएँ। उनके लिए हमने बाज़ार कायम किया है, आके ख़रीदारी करें और फ़ायदा उठाएं।
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला का यही कहना है कि यहाँ पर जो एशिया नोश है वो आम बाजार से 5 से 10 रुपए। बहुत शुक्रिया सईद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि दूसरे शहरों की तरह जहानिया में भी हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सहूलत बाजार में आटा भी कम कीमत पर दस्तयाब फराहम कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन से। जी अमजद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सुलेमान की ज़ेर निगरानी जहानिया में सहूलत बाज़ार में ये आटा पॉइंट भी कायम कर दिया गया है, जिसमें अर्जा नरखों पर और मियारी आटा लोगों को लिए फ़रोख्त किया जा रहा है। इसमें आटे के रेट भी कम कर दिए गए हैं। आम मार्केट में आटे का रेट 840 रुपये और इसमें 10 रुपये सस्ता 830 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आटा हमें सस्ता और मियारी यहाँ अर्जा नरखों पर मुहैया किया जा रहा है। और जब हमारी इस सिलसिले में इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि दूसरे शहरों की तरह जहानिया में भी आटे की फरावानी है, यहाँ किसी को कोई मुश्किलात का सामना नहीं है और आटे की कोई किल्लत नहीं है। लोगों को सस्ता और मियारी वाफर मकदार में आटा मुहैया किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पीर वसन के रिहायशी 32 साला इरीगेशन डिपार्टमेंट घोटकी का मुलाजिम 9 दिनों से लापता लवाहिकीन ने अगवा या कत्ल होने के शक पर पुलिस को इत्तला कर दिया। 32 साला नौजवान अख्तर मंगहार घोटकी में मुलाजमत करता था, जो चंद रोज से लापता है, जबकि इसके जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल मीरपुर माथेलो से बाजियाब करवा ली गई, लेकिन नौजवान का कोई पता भी नहीं लगा। लवाहिकी ने अगवा या कत्ल के शक पर पुलिस से भी कई बार राबता किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासिरीन ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि अख्तर नामी नौजवान को जल्द बाजियाब करवाया जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि छाछरू के नवाही गांव का 20 साला नौजवान गुर्बत की वजह से इलाज से महरूम है और कई सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तहसील छाछरू के गांव मंगल रिंद का 20 साला नौजवान इसरदास महगौड़ गुज़श्ता कई सालों से कारखाने में टांग कुटने की वजह से चलने से महरूम हो गया। नौजवान ऐसरदास का कहना है कि मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था और हैदराबाद मजदूरी के लिए गया था, लेकिन कारखाने की मशीन में टांग टूट गई और अब लाचार बिस्तर पे हूँ। मेरे वालिदैन गुर्बत की वजह से इलाज नहीं करवा सकते, सरकारी खर्च पर मेरा इलाज करवाया जाए। महकमा तालीम टंडूवाला यार की जानिब से घोट अली शेर मुहाजिर में स्कूल टीचर फराहम न करने और स्कूल के बच्चों की तादाद 0 हो गई है। इलाका मकीनों का डीओ एजुकेशन प्राइमरी तालुका झंडोर मरी के ऑफिस के सामने एहतजाज। मज़ीद तफसीलात अब्दुल रशीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। तालका झंडोमरी के गांव अली शहर महाजर के दर्जनों अफराद ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से टीचर के तबादले करने और स्कूल में उस्ताद फराहम न करने के खिलाफ दर्जनों अफराद ने मुनव्वर राजपूत, लाला राजपूत, भानु कोहली की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन प्राइमरी के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में एक तो तैलीम है ही नहीं और जो है ऐसे में महकमा तालीम के अफसरान तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में बच्चों की तादाद ज्यादा है और एक उस्ताद बच्चों के लिए नाकाफी है। बच्चों की रजिस्ट्रेशन वाला हुकाम को कम बताकर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सुबह 9 बजे से डीओ के ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन कोई भी ऑफिसर नहीं है। उन्होंने वजीर आला सिंध, वजीर तालीम सिंध, डिप्टी कमिश्नर टंडोलियार से मुतालबा किया है कि स्कूल को और बच्चों का मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें और फौरी नोटिस लिया जाए। कैमरामैन एहतसाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, टीवी टुडे न्यूज़, टंडोलियार। डीएसपी शोरकोट की हिदायत पर इंचार्ज चौकी जलालपुर कमलाना राजा अली नवाज ने कार्रवाइयां करते हुए नाजायज असलहा रखने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद करके तीनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके हवालात में मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजा अली नवाज का कहना था कि नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेंगे। ऐसे अफराद के खिलाफ पुलिस को इत्तला भी देंगे। आपका नाम सीगाराज में रखते हुए ऐसे अफराद को कानून के कटहरे में भी लाया जा सकेगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करेंगे कच्चा खूह में पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से पूरे शहर का सीवरेज का पानी पीर कॉलोनी में जमा हो चुका है। इलाका मकीन परेशानी से दो चार है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा खूह पीर कॉलोनी में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के इलाका मकीनों ने हमें बुलाया। उनका ये कहना है कि यहाँ पर पूरे कच्चा खूह का जितना भी गंदा पानी है वो सीवरेज का मुनासिब इंतज़ाम न होने की वजह से यहाँ पर पीर कॉलोनी के सामने खड़ा हो चुका है और ज़्यादा देर खड़ा रहने से और आगे फिर निकासी आपका कोई मुनासिब इंतज़ाम न होने की वजह से जो आसपास की आबादी है उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कोई पुरसान हाल नहीं है। कई मरतबा ज़िला इंतज़ामिया को आगाह किया गया मगर कोई पूछने वाला नहीं और अब सूरत हाल इंतहाई बदतर होती चली जा रही है। बदबू फैल रही है इस खड़े पानी से और मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खर्चा है। आसपास की जो आबादी है इंतहाई परेशान है। इस वक्त मेरे साथ यही पीर कॉलोनी आबादी के रहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि उस मुतल्लिक क्या कहते हैं। जी, ये जो पानी है पूरे कच्चा खूह की निकासी यहाँ पे आके रुक जाती है। इससे आगे कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं है और इस खड़े पानी से मच्छर पैदा हो रहे हैं। मच्छरों से जो है बच्चे बीमार हो रहे हैं और बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से ख़ुसूसी डीसी साहब से ये अपील है कि इस पानी का कोई मुनासिब हल निकाला जाए और हमें इस खड़े पानी से छुटकारा दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उसका यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को इनकी तरफ से अपील है कि जल्द अज जल्द फौरी कार्रवाई करते हुए तरजीही बुनियादों पर इस खड़े पानी का कोई निकासी का मुनासिब इंतजाम किया जाए। बहुत शुक्रिया जीशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानगढ़ से मुजफ्फरगढ़ रोड महकमा हाईवे की मुबैना गफलत के बायस जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। आए दिन हादसात मामूल बन गए। इस बारे मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सजाद असलम। जी सजाद, अपडेट कीजिएगा। नाक़िस हिकमत अमली की वजह से जगह जगह से टूट चुका है जो मजीद किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ज़राए से मालूम हुआ है कि महकमा हाईवे के अफसरान दफातर में बैठ कर मुबैना तौर पर फ़ंड्स की बंदर बांट में मसरूफ़ होकर जो आवाम की हैं वो मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुतअद्दिद हादसात का बायस बनने वाला ये रोड जिसकी मुरम्मती के लिए तकरीबन सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 60 बैलदार तैनात किए गए हैं जिनमें से अक्सर जो बेशतर घर बैठ कर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं जो कि महकमा हाईवे की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। अवामी और समाजी हलकों ने रोड की मुरम्मती का मुतालबा किया है ताकि अवाम की जो है वो जानो माल की हिफाजत की जा सके। जी बहुत शुक्रिया सजाद, अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह डेरा मुराद जमाली में भी तकरीबात का आगाज हो गया। बाजारों में रबीउल अव्वल की मुनासबत से परचमों, झंडियों और बैज समेत दीगर सजावटी अशिया के स्टॉल्स सजा दिए गए। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह डेरा मुराद जमाली में भी पैगम्बर इस्लाम विलादत बासआदत की खुशी में महाफिल का आगाज किया गया। शहर समेत मोहल्लों और देहातों में भी रूह परवर महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। महफिल मिलाद में और उलमा की जानिब से मुल्की सलामती और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। सादिकाबाद के इलाके इत्तेफाक टाउन की रिहायशी बेवा खातून और बच्चों से महंगाई ने मुंह का निवाला छीन लिया। 3 दिनों से भूखे बच्चे आंसुओं के दरिया से प्यास बुझाने लगे। बच्चों को तसल्लियां देने वाली माँ रियासत मदीना की राहें तकने लगी हैं। सादिकाबाद से दनी बख्श मेहर की रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद के इलाके इत्तेफाक टाउन का ये घर गुर्बत व इफलास की जीती जागती तस्वीर है, जहां एक बेवा खातून अपने 6 बच्चों के साथ कुर्ब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बेवा खातून शौहर के इंतकाल के बाद लोगों के घरों में काम काज करके बच्चों का पेट पालती थी, मगर अब महंगाई ने इस खानदान के मुंह से निवाला छीन लिया है। महीनों से घर में राशन नहीं आया, घर में फाकों की नौबत आन पहुंची। महीनों से बर्तन धोकर रखे हैं मगर महंगाई की वजह से इनमें खाना नहीं पक सका। बेवा खातून का कहना था कि 3 दिन हो गए बच्चे भूखे साडे कोल खाण पीण नूं कोई चीज़ नहीं है कि मैं झूठ नहीं कहंदी। बच्चियां मेरियां छोटियां छोटियां मैं कितों मेहनत मजदूरियां में करके इन्हां नूं पाला। 3 दिनों से मैंने और मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया। रात को सूखी रोटी पानी में भिगोकर बच्चों को खिलाई है। भूख से बच्चे रोते हैं, मेरा कलेजा मुंह को आता है, मगर मजबूर हूँ, कोई चीज़ खरीद नहीं सकती। मकान किराए का है, बच्चे खाली बर्तन देख कर रोटी मांगते हैं। मुतासरा खातून की बेटी का कहना था कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। मैं पहले स्कूल जाती थी, फीस ना होने की वजह से मैंने स्कूल भी छोड़ दिया है।
किराए पे मकान है, हमने 3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, रात को पानी के साथ खाई थी। रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत ने महंगाई का जो तूफान बर्पा कर दिया है, इसकी जद में ऐसे ना जाने कितने खानदान आ गए होंगे जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे होंगे। हुकूमत को चाहिए कि इनकी मदद करे। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श महार, TV टुडे न्यूज़, सादिकाबाद। एहसन इकबाल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, ये आपको बराह रास्त सवाब लिए चलते हैं। तो हमने 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगा के पाकिस्तान को जीरो लोड शेडिंग पे ला के खड़ा किया, पाकिस्तान को बदला। अभी वो अपने नाम कर रहे हो। और फिर इसी तरह पाकिस्तान में हमारी बहादुर मुसल्लह फौज को नवाज शरीफ ने कहा कि आप दहशतगर्दी खत्म करें, हम पेट पे पत्थर भी बांधना पड़ेगा बांधेंगे, लेकिन आपको बजट देंगे, वसाइल देंगे ताकि आप दहशतगर्दी को शिकस्त दे सकें। तो 500 अरब रुपया इजाफी बजट दिया फौज को, सिक्योरिटी को, और हमारे सिपाहियों ने, हमारे फौजियों ने, हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने और पूरी कौम ने मिलकर उस जंग को लड़ा। जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो नवाज शरीफ ने 24 घंटों में सारी सियासी क़यादत को इकट्ठा किया, फौजी क़यादत को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया और कहा कि अब पूरी कौम मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। और उस मीटिंग में उस इमरान नियाजी को भी बुलाया जो इस्लामाबाद में बैठ के गालियां देता था और धरना देता था। ये क़यादत होती है कि आप मुल्क के लिए सबको इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं। और आपने देखा जब हमने कौम को इकट्ठा किया तो पाकिस्तान में अमन आया। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सबसे ज्यादा अमन मिला। आप मुझे बताएं कि अमन आया कि नहीं आया? तो जनाब, अगर अंधेरों को रोशनी में तब्दील किया जाए तो इसे तब्दीली कहते हैं, और दहशतगर्दी को अमन में तब्दील किया जाए तो इसको तब्दीली कहते हैं। और फिर वो पाकिस्तान जहां पर कोई $1 नहीं लगाता था, हमने 4 सालों से कम अरसे में 29 अरब डॉलर के सी पैक के मंसूबे लगाए, जिससे चारों सूबों के अंदर तवानाई के मंसूबे शुरू हुए, मोटरवे के मंसूबे शुरू हुए, गवादर की बंदरगाह बनी और पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने कहा कि ये अब सरमायाकारी का मरकज बन गया है। अफगानिस्तान भी सीपैक में आना चाहता था, वस्ती एशिया के मुल्क भी सीपैक में आना चाहते थे, सऊदी अरब भी आना चाहता था, यूरोप भी आना चाहता था, सारे दुनिया के मुल्क कहते थे हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए आना चाहते हैं। तो मुझे बताओ कि क्या ये तब्दीली नहीं थी कि जहां पर $1 कोई लगाने के लिए तैयार नहीं था, वहां पे अरबों डॉलर गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ गई थी। तो ये वो पाकिस्तान था जो बदल रहा था।
आपको बताएं कि स्वाबी में रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि नौजवान सोचते हैं क्या मेरा मुस्तकबिल भी माजी जैसा होगा। 2013 में कोई कारखाना नहीं चलता था, 2013 तक मईशत तबाह हो चुकी थी। ये कहना था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए स्वाबी में। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि खानेवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां डकैती और राहजानी की वारदातों में मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का कहना है कि मुलजमान के कब्जे से छीनी गई गाड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैती और राहजानी के मुकदमात में मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनसे भारी मिकदार में लूटा गया सामान और नकदी कैश बरामद कर लिया गया। मैं इसमें हम बात कर लेते हैं, हमारे सर DSP मलिक जाज साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी सर, आप ही बताइएगा कि नकदी कैश बरामद करके मुद्दइयों को वापस किए गए, इस वाले से क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानेवाल में आए रोज़ वारदात में इजाफा हो रहा था, राहगीरों से लोगों से पैसे छीने जा रहे थे, मोबाइल छीना जा रहा था। तो DPO साहब की ज़ेर क़यादत उन्होंने हमें टास्क दिया जिस पे SHO सिटी ऑन अब्बास ने बड़ी मेहनत की और ये गैंग हमने गिरफ़्तार किया। उससे तमाम की तमाम लूटी हुई रकम कोई तकरीबन 5-6 लाख के करीब और मोबाइल और मोटरसाइकिल वगैरह बरामद कर लिए गए, जो DPO साहब ने अपने हाथ से मुद्दइयों को बुलवा के उनकी पूरी की पूरी रकम वापस करवाई। और इसके अलावा भी काफ़ी मेहनत की गई है और मवेशी गैंग और दूसरे गैंग भी सर्कल खानेवाल में पकड़े गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वारदात पे किसी हद तक कंट्रोल है। जी, वारदातों पर जो है कंट्रोल। बहुत शुक्रिया मलिक उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि ज़िला सरगोदा में एक बार फिर नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है और ब्लॉक नंबर 2 फैसल बाजार और उर्दू बाजार में कब्जा माफिया ने अपने पंजे जमा लिए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं सरगोदा से नुमाइंदा TV टुडे अली रज़ा से। जी अली रज़ा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फिर से नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार हो गई है। ज़िला सरगोदा में फिर से कब्जा माफिया ने अपने पंजे भी जमाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन का अमला इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े ले, लेकिन किसी भी किस्म की जो ज़िला इंतज़ामी की जानिब से कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। ब्लॉक नंबर 3 में फिर से जो कब्जा माफिया ने अपने पंजे भी जमा लिए हैं। फिर से जो किराएदारी का सिलसिला भी जारी है। ब्लॉक नंबर 2 की बात कीजिए तो ब्लॉक नंबर 2 का भी वही हाल है, वही सूरत हाल है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन का अमला वो इस वक्त अपने ठंडे कमरों में बैठ कर आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट देने में लगा हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर मेट्रोपॉलिटन का अमला जो है बाजार में गश्त करता दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ वो गश्त जो है सैर सपाटे तक महदूद हो जाता है। जब इसी मामले में हमारी शहरियों के साथ बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था और तमाम सरकारी ज़मीनें जो वागुजार करवाई गई थी, लेकिन फिर से जो वही सूरत हाल है, फिर से नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है। जब इसी मामले में हमारी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान के साथ बात हुई तो उनका यही कहना था कि ट्रैफिक रवानी की मुश्किलात में भी सिर्फ मेट्रोपॉलिटन का हाथ है। मेट्रोपॉलिटन का अमला जो है ना ही किसी भी किस्म की कार्रवाई करता है, लेकिन ना ही किसी भी किस्म के नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। जब इसी मामले में हमारी ज़िला इंतज़ामिया के साथ बात हुई तो ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना था कि हमने तमाम जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो बाजार में ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। ब्लॉक नंबर 3 की बात कीजिए तो ब्लॉक नंबर 3 में फिर से जो है हज़ारों रुपये के हिसाब से किराएदारी का सिलसिला जारी है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन का अमला जो है सिर्फ गश्त तक मामूर, गश्त तक महदूद हो गया, ना ही किसी भी किस्म की कार्रवाई की जा रही है। लोगों का यही कहना है कि ट्रैफिक रवानी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आला अफसरान जो है इस पर नोटिस ले ताकि जो रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात मामूल बन रहे हैं उन पर भी रोकथाम की जा सके और जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उन्हें भी दोबारा वागुजार कराया जा सके। जी, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकपतन पुलिस ने पंजाब भर में वारदातें करने वाले 4 खतरनाक डकैत गैंग्स गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 72 लाख मालियाती माल मसरूका और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जदीद असलहा बरामद कर लिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं तैमूर खान बलोच। पाकपतन पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब 22 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO पाकपतन नजीबुर रहमान के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से 72 लाख मालियाती माल मसरूका बरामद किया गया। 4 गैंग्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उसके 22 मुलजमान को अरेस्ट किए। बेसिकली ये डकैती की काफ़ी वारदातों में मुलविस थे। इसमें माल मवेशी जो है वो भी शामिल है, इसमें तलाई ज़ेवरात भी शामिल हैं। इसके बाद जो घरेलू साजो सामान, मोटरसाइकिल, स्नैचिंग जो इन्होंने की थी वो भी हमने रिकवर की हैं। और ये तमाम जो मालियत बनती है, जो रिकवरी है, वो तकरीबन 72 लाख है।
ये पाक वतन के नवाई इलाके में ऑपरेट कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक 4 खतरनाक डकैत गैंग से है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान पंजाब के मुतअद्दिद अजला में पुलिस को डकैती की वारदातों में इंतहाई मतलूब थे। आपको बताएं कि खैरपुर पीर जोगोठ और गिरदो नवा में आवारा कुत्तों की भरमार, 7 अफराद को कुत्तों ने काट लिया। कुत्तों के काटने की वैक्सीन नापैद है। पीर जोगोठ में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने सिंध हाई कोर्ट शक्कर बेंच के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पीर जोगोठ और गिरदो नवा में आवारा कुत्तों ने 7 अफराद को काट लिया, जिनको तहसील अस्पताल पीर जोगोठ लाया गया, जहां कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद ही नहीं। याद रहे, गुज़श्ता दिनों सिंध हाई कोर्ट शक्कर बेंच ने हुक्म दिया था कि इलाके में अगर किसी शख्स को कुत्ते ने काटा तो वहां के CMO या TMO पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।